हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि म्यूज़िक प्ले सिस्टम क्या होता है, उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं और हम किस टाइप का म्यूज़िक प्ले सिस्टम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। पाइथन की मदद से हम किस टाइप का एक म्यूज़िक प्ले सिस्टम बना सकते हैं और किस टाइप का म्यूज़िक प्ले सिस्टम बनाने वाले हैं। नाउ इन दिस वीडियो आई एम स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, or before moving forward I want to convey a small information, and that is whenever we download any application, after installing it and after running it, a window is appeared in front of us, and this window contains a various widgets. For example, it contains label frames, it contains frames, it contains buttons, etc. Let me show you one thing, and that is when I run this program. So हाँ, uh, in this program you can see that there is a main window appear in front of us named as simple music player, and this window contains some various widgets. For example, audio track label frame, this control label frame, this progress bar label frame, this volume bar label frame, and this label frame contains nav bar and playlist. Other than this, similarly there is a control label frame, which contains the various buttons. For example, previous song button, next song button, this play song button, etc. Various buttons are there. So these all are called the widgets, and these all widgets are present inside this main window, and everything that we are seeing in front of us in this screen, that is called a GUI, graphical user interface. So for implementing the graphical user interface, Python provides us a library named as Kinter, which generally help us in dealing with the graphical user interface. So now I'm going to implement my code. So here we go. सबसे पहले हम पाइचाम खोल लेंगे। पाइचाम खोलने के बाद हमको एक न्यू फाइल बनानी है। सो इस वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक में क्लिक करने के बाद न्यू में क्लिक करेंगे। न्यू में क्लिक करने के बाद पाइथन फाइल में क्लिक करेंगे और इस पाइथन फाइल को नाम दे देते हैं सिंपल म्यूज़िक प्लेयर सिस्टम। सो I have given a name simple music player system. So you can see that a new file is created in front of us, that is named as simple music player system. Now first of all हमको हमको सबसे पहले import करना होगा Kinter मॉड्यूल को। So उसके लिए हमको ये लिखना पड़ता है import from tkinter, मतलब कि from Kinter में से फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट स्टार का मतलब होता है कि एवरीथिंग। जो किंटर मॉड्यूल है उसमें से उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ होंगी, जितने भी फंक्शंस उसके अंदर होंगे इस लाइब्रेरी के अंदर, सो वो सारे के सारे फंक्शन हमको मिल जाएंगे अगर हम ये लाइन लिखेंगे कि फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट स्टार। आफ्टर दैट हम एक वेरिएबल ले लेते हैं रूट नेम का। सो रूट इज इक्वल्स टू कैपिटल T एंड स्मॉल k, सो दैट वी हैव टू राइट, एंड दिस इज अ बेसिक सिंटैक्स कि किसी भी एक मेन लूप को बनाने का एक सिंटैक्स होता है। सो रूट इज इक्वल्स टू TK, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट रूट डॉट मेन लूप। सो if I run this code, then you can see that a new screen is present appear in front of us. एक नई स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी इस तरीके से। Now ये जो स्क्रीन है इसमें ये भी स्मॉल स्क्रीन आ रही है, बहुत छोटी स्क्रीन आ रही है, बड़ी नहीं आ रही साइज़ में। सो उसको पूरी की पूरी मतलब डेस्कटॉप की स्क्रीन के बराबर करने के लिए हमको एक छोटी सी चीज़ लिखनी है, वो ये है, हमको लिखना होगा रूट डॉट स्टेट। और जितनी भी चीज़ हम लिखेंगे मतलब कि रूट के अंदर होनी चाहिए, रूट और मेन लूप के बीच में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल रूट डॉट स्टेट एंड देन वी हैव टू राइट zoomed, zoomed. So you can see that this main window is appear in front of us, and this window is exactly equals to the size of the desktop window. So for that we have to write this thing, root dot state is equals to root dot state, and inside the state we have to write zoomed. After that we are having another after that इसके बाद हमको क्या करना होता है, अब सपोज हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं अपनी मेन लूप में। सो उसके लिए हमको करना पड़ता है रूट
dot main loop, no sorry, root dot configure, रूट डॉट कन्फिगर लिखना होता है। इनसाइड द कन्फिगर वी विल राइट, कन्फिगर जनरली इसलिए इस्तेमाल करा जाता है ताकि हम कोई भी चेंजेस और प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहते हैं अपनी मेन लूप के अंदर, सो वो ईजिली हो सकती है। फॉर एग्जांपल लाइक इफ आई राइट बी जी इज इक्वल्स टू एक्वा मरीन, देन यू कैन सी एक अब विंडो अपीयर हो गई है जिसका कलर जो है, बैकग्राउंड कलर जो है वो एक्वा मरीन हो गया है। सो दैट वी नीड, सो ये बना लिया। अब उसके बाद हमको करना होगा रूट डॉट मेन हो गया, देन रूट डॉट आइकन बिट। इफ आई अगेन ओपन दिस इफ आई अगेन ओपन दिस प्रोजेक्ट, देन यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो नेम है वो टी के है। यहाँ पे नेम होना चाहिए था सिंपल म्यूजिक प्लेयर सिस्टम। सो फॉर चेंजिंग दिस नेम एंड फॉर चेंजिंग दिस आइकन, ये जो आइकन है ये आइकन दूसरा आइकन है, हमें अपना म्यूजिक प्लेयर सिस्टम का आइकन लगाना है। सो उस चीज़ को चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है रूट डॉट आइकन बिट मैप। और आइकन बिट मैप जो होता है इसके अंदर जो भी हम आइकन बिट मैप जो होता है वो यूज़ करा जाता है फॉर चेंजिंग द आइकन ऑफ आवर रूट विंडो। सो इसके अंदर जो भी इमेज का नेम होगा वो ICO एक्सटेंशन में होना चाहिए। सो लाइक music.ico, this is the file that I have downloaded from the Google, that is the image. Let me show you. This is the image, music.ico, and this is the image that I have downloaded, and it's the extension of this image is in the form of .ico. so आइकन बिट मैप जो होता है वो केवल ICO फाइल्स को ही ICO फाइल पे ही एप्लीकेबल होता है। तो आप लोग जो भी गूगल से डाउनलोड करोगे ऐसा आइकन जो भी डाउनलोड करोगे गूगल से, वो आइकन बेसिकली ICO फॉर्मेट में होना चाहिए। सो नाउ इफ आई रन इट, यू कैन सी दैट द आइकन इज चेंज टू दिस आइकन music.ico now, but name is not changed. For changing the name, we have to write this syntax, root dot title, and inside the title we will write the name, like जो भी नेम हम रखना चाहते हैं हमारे म्यूजिक प्ले सिस्टम का, उसका नेम लिख देंगे सिंपल। लाइक इफ आई वांट टू राइट सिंपल म्यूजिक प्लेयर सिस्टम, सो ये नेम हो गया। नाउ मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। सो जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास सामने ये जो नेम है वो चेंज हो गया, सिंपल म्यूजिक प्लेयर सिस्टम, और जो आइकन है वो भी चेंज हो गया, दोनों चीज़ें चेंज हो गई। जो टाइटल होता है वो बेसिकली नेम चेंज करने के लिए होता है, एंड आइकन बिट मैप जो होता है वो हमेशा आइकन चेंज करने के लिए होता है। बट ये जो होता है वो केवल music.ico फॉर्मेट को ही लेता है, मतलब कि मतलब कि ये केवल .ico एक्सटेंशन की फाइल्स को ही इमेजेस को, आइकन्स को ही लेता है। और जो रूट डॉट स्टेट होता है ये हमारा इसलिए यूज होता है ताकि जो मेन स्क्रीन है वो डेस्कटॉप स्क्रीन के इक्वल साइज़ की हो। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू राइट we have to make these frame labels, that is this control frame label, this audio frame label, this volume bar frame label, this progress bar frame label, this playlist, this frame label which contain nav bar and playlist. So for that, first of all we have to make a function. The name of the function is, I will make the name of the function def create, अभी के लिए पास लिख देते हैं। यहाँ पे पास जो होता है बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होता है अगर हम फंक्शन के अंदर कोई भी चीज़ नहीं लिखना चाहते हैं और अभी कुछ नहीं करना चाहते हैं फंक्शन के अंदर, तो पास लिख देंगे, मतलब कि स्टेटमेंट जो है पास हो जाएगा, इससे एरर नहीं आएगा, बस यही यूज़ है इसका। अब जैसे यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ फंक्शन का नेम, लाइक क्रिएट, यहाँ से मैंने कंट्रोल को पास कर दिया इस फंक्शन में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बनाना है ये वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बना लेते हैं ये वाला फ्रेम लेबल फ्रेम बनाना होगा जिसमें नैव बार है और जिसमें प्लेलिस्ट है।
इधर nav bar और playlist. So for that we have to write suppose variable ले लेते हैं like nav bar nav with प्ले लिस्ट, ये वेरिएबल का नाम ले लिया हमने। इसके बाद हमको करना होगा जो लेबल फ्रेम बनाने के लिए हमारे पास एक विजिट होता है जिसका नाम होता है लेबल फ्रेम। सो उसका इस्तेमाल करेंगे लेबल फ्रेम एंड इनसाइड दिस लेबल फ्रेम वी विल राइट रूट। वाई वी हैव रिटन रूट? सो रूट इसलिए लिखा जाता है कि जो ये लेबल फ्रेम है वो किस विंडो के अंदर है। जो ये लेबल फ्रेम है ये होल विंडो जो है ये पूरी की पूरी में रूट नेम की मतलब रूट विंडो है। और जो ये लेबल फ्रेम है जो हम बनाने वाले हैं अभी फ्रेम में नेव बार और प्लेलिस्ट के नेव बार और प्लेलिस्ट जिस लेबल फ्रेम के अंदर है वो लेबल फ्रेम किसके अंदर है? वो लेबल फ्रेम रूट विंडो के अंदर है। सो फॉर दैट इसीलिए हमको यहाँ पर रूट लिखना पड़ता है। आफ्टर दैट वी हैव टू सपोज वी वांट टू गिव अ बीजी कलर इक्वल्स टू ग्रे। दिस विल चेंज द color of the label frame. So background color of the label frame. So gray. Suppose मैंने name of color is gray 17. Gray 17 कलर हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद width. Width suppose width हम दे देते हैं इसकी लेबल फ्रेम की width दे देते हैं 730 एंड height दे देते हैं 735. So जो ये विड्थ और हाइट है ये आप लोगों को मेज़र करनी पड़ेगी, मतलब कि बार बार आप लोगों को इस कोड को रन करके ट्राई करते रहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट दैट कि आपको कितनी विड्थ चाहिए कितनी हाइट चाहिए। उसके बेसिस पे आपको बार बार इसको रन करना पड़ेगा और फिक्स करनी पड़ेगी एक विड्थ और हाइट चूज़ करनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर विड्थ और हाइट। फॉर एग्जांपल सपोज अभी मैं इसको 730 नहीं करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 800 और इसको कर देता हूँ कुछ समय के लिए लाइक 100। सो ये हाइट और विड्थ मैंने दे दी है अभी के लिए इसके लिए। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू राइट nav विथ प्लेलिस्ट डॉट ग्रिड। सो ग्रिड मेथड जो होता है ये ज्योमेट्री मैनेजमेंट मेथड होता है। ये जो होता है जनरली इसलिए यूज़ करा जाता है ताकि जैसे ये है हमारा जो ये लेबल फ्रेम आ रहा है जो nav बार और प्लेलिस्ट को कंटेन कर रहा है, ये जो है किस जगह पे होना चाहिए पूरी मेन विंडो पे, किस जगह पे इसको मतलब होना चाहिए, इसकी ज्योमेट्री किस जगह पे होनी चाहिए, इसकी लेफ्ट में होना चाहिए राइट में होना चाहिए, पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, उस चीज़ को बताने के लिए बेसिकली ग्रिड का इस्तेमाल करा जाता है। सो ग्रिड इज अ ज्योमेट्री मैनेजमेंट मेथड। नाउ इनसाइड दिस ग्रिड वी हैव टू राइट रो इक्वल्स टू 0, मतलब जो रो है वो 0 है एंड कॉलम इक्वल्स टू 0 सिमिलर लाइक द टेबल। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं तो जैसे ये है इस पूरे को इतने पूरे को हमने माना है कि ये रो 0 है, इसकी रो 0 पे और कॉलम 0 पे है। इसका मतलब जो ये होगा ये कहाँ पे होगा हमारा, ये रो 0 पे होगा लेकिन कॉलम 1 पे होगा, लेकिन कॉलम कहाँ पे होगा 1 पे होगा और इसमें रो स्पैन भी लगेगा। तो वो चीज़ है बेसिकली रो और कॉलम हमने यहाँ पे पास कर दिया। आफ्टर दैट वी हैव टू पास पैडेक्स इक्वल्स टू सपोज पैडेक्स मतलब कि एक्स से जो डिस्टेंस होगा, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो पैडेक्स कहा जाता है और पैड वाई यानी कि वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसको पैड वाई कहा जाता है। तो पैडेक्स अभी के लिए मान लेते हैं लाइक 2 और पैड वाई मान लेते हैं लाइक पैड वाई भी 2 ले लेते हैं एंड देन रो स्पैन we have to do row span as well. Pad y equals to 2 and row span equals to and row span equals to suppose we have passed row span equals to 14 that I have calculated. These all values I have calculated. मैंने ये सारी values calculate कर रखी इसीलिए easy हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को इसको बार बार चेंज करके जैसे फॉर एग्जांपल इसको आपको एक बार 14 करना होगा, कभी 15, कभी 16, इस तरीके से चेंज कर करके पता करना होगा कि क्या ये आपके मतलब आपके अकॉर्डिंग एकदम फिक्स आ चुका है, फिक्स साइज में आ चुका है, जितना आपको चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग। नाउ सपोज इफ आई रन दिस प्रोग्राम देन यू विल सी दैट रन दिस प्रोग्राम सो आपने देखा कि एक
एक लेबल फ्रेम बन गया, लेकिन जो ये लेबल फ्रेम है वो उसका साइज़ फिक्स नहीं है। अभी इसका साइज़ फिक्स नहीं है, अभी मेरे को इतना नहीं चाहिए, मेरे को करीबन इतना चाहिए। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, बार बार इसको चेंज करनी होगी वैल्यूज़ को, और फिर जाके वो फिक्स साइज़ में आ जाएगा। अब मेरे पास जैसे वैल्यूज़ पहले से हैं, मैंने कैलकुलेट कर रखी हैं, तो मैं उसको डायरेक्ट पुट कर देता हूँ 730, और इसकी जो हाइट होगी वो होगी 735। सो 735। नाउ मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखोगे कि जो आउटपुट है वो एकदम सिमिलर आया जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। इस तरीके से बिल्कुल सेम साइज़ का आउटपुट आ रखा है और एकदम परफेक्ट आउटपुट आ रखा है। नाउ अब हमको ऑडियो ट्रैक फ्रेम बनाना है। सो ऑडियो ट्रैक फ्रेम बनाने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे कमेंट लिख लेते हैं, क्योंकि कमेंट को यूज़ करना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इज़ अ वेरी गुड हैबिट, और it's become easy for the fellow programmer also, so that to understand our code, he or she can easily understand our code. So यहाँ पे लिख लेते हैं nav bar, and यहाँ पे लिख लेते हैं label frame containing nav bar and प्ले लिस्ट। इस तरीके से इसके नेम को सेव कर लेते हैं, हम सॉरी मतलब कमेंट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं अनदर लाइक ऑडियो ट्रैक फ्रेम, ऑडियो ट्रैक फ्रेम। अब हमको बनाना है ऑडियो ट्रैक फ्रेम। सो फॉर मेकिंग द ऑडियो ट्रैक फ्रेम, again we have to use the same syntax, that is we have to use the label frame। हमको label frame का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे के पूरे कोड को, कॉपी एंड देन पेस्ट। सो यहाँ पे नेम चेंज कर लेते हैं बस वेरिएबल का, कि हमको ऑडियो ट्रैक फ्रेम करना है, तो ऑडियो ट्रैक फ्रेम नेम रख लेते हैं इसका, और यही जो नेम है वो इधर पे भी होना चाहिए, कॉपी वी। नाउ इसके अंदर हमको कुछ फंक्शनैलिटीज़ चेंज करनी होगी इसकी। फॉर एग्जांपल लाइक हमको इसके अंदर ऑडियो ट्रैक फ्रेम के अंदर हमको देना होगा रूट हो गया, बैकग्राउंड कलर इज सेम। हम बैकग्राउंड कलर भी हम सेम देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो बैकग्राउंड कलर सेम है, इसका और इसका बैकग्राउंड कलर सॉरी इसका और इसका बैकग्राउंड कलर सेम है। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट फोरग्राउंड कलर दे सकते हैं हम, फोरग्राउंड कलर पास कर देते हैं यहाँ पे। सो फोरग्राउंड कलर बाद में पास करेंगे, पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं, दैट इज टेक्स्ट इक्वल्स टू ऑडियो ट्रैक नाउ बेसिकली जो टेक्स्ट होता है वो क्या करता है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक ऑडियो ट्रैक लिखा हुआ आ रहा है। सो इस चीज़ को पुट करने के लिए हमको टेक्स्ट लिखना होता है, टेक्स्ट इक्वल्स टू ऑडियो ट्रैक। नाउ टेक्स्ट एट्रीब्यूट पर हमको ऑडियो ट्रैक लिखना होता है। आफ्टर दैट वी हैव टू वी विल राइट फोरग्राउंड कलर एफ जी इज इक्वल्स टू एक्वामरीन। सो एक्वामरीन। सो बेसिकली जो फोरग्राउंड कलर होता है वो क्या करता है, वो सेट कर देगा इस टेक्स्ट के कलर को एक्वामरीन, इस टेक्स्ट के कलर को एक्वामरीन सेट कर देगा। और इसके बाद हमको फॉन्ट जो होता है, जो फॉन्ट एट्रीब्यूट होता है वो बेसिकली क्या करता है, उसका फंक्शन ये होता है फॉन्ट एट्रीब्यूट का कि जो भी हमारा ये टेक्स्ट हम लिखने वाले हैं दैट इज़ ऑडियो ट्रैक, उसका स्टाइल क्या होगा। सबसे पहले उसका स्टाइल मतलब किस स्टाइल में होना चाहिए, तो हम सपोज ले लेते हैं एरियल फॉर्मेट में, एरियल स्टाइल में उसका टेक्स्ट लिखा होना चाहिए, उसका जो साइज़ होना चाहिए वो 12 होना चाहिए। एंड देन उसके बाद हम लिखते हैं इटैलिक बोल्ड, यानी कि उसका किस तरीके से दिखना चाहिए, इटैलिक दिखना चाहिए, बोल्ड दिखना चाहिए, किस तरीके से, तो इटैलिक बोल्ड दिखना चाहिए। सो दैट आई हैव रिटन। नाउ आफ्टर दैट we have to use that audio track frame dot configure. We use audio track frame dot configure over there. So audio track frame
ऑडियो ट्रैक फ्रेम डॉट कॉन्फ़िगर। सो कॉन्फ़िगर जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए होता है। नाउ अब मैं इसकी विड्थ और हाइट सेट करूँगा। नाउ विड्थ और हाइट आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लेकिन ये मैंने पहले से मेज़र करके रखी है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता हूँ। लेकिन आपको बार बार ट्राई करना होगा अगर आप अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो। लाइक मैंने वैल्यूज पहले से सेट कर रखी, तो 500 हो जाएगा इसका विड्थ। एंड हाइट इक्वल्स टू हम ले लेंगे 350। सो दिस इज़ अ हाइट एंड दिस इज़ अ विड्थ। नाउ लेट मी चेक द ऑटो ट्रैक फ्रेम डॉट ग्रेड के ग्रेड रो इक्वल्स टू 0 कॉलम। ना रो तो 0 होगा ही होगा, लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए? कॉलम शुड बी 1, कॉलम 1 होना चाहिए। और पैड एक्स पैड वाई को दे देंगे 2, लेकिन रो स्पैन नहीं होगा यहाँ पे कोई भी, क्योंकि रो स्पैन पहले ही हम कर चुके हैं। उसकी मदद से पहला जो कॉलम रो होगा वो 14 रो स्पैन का होगा ही होगा जो पहले से है उसमें। नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम, then you can see that our audio track frame is present in front of us with और उसमें audio with audio track frame written over there। so audio track frame बन गया। अब audio track frame बनाने के बाद हमको बनाना है that is the audio control frame bar। audio control frame bar बना लेते हैं, जो ये है this control frame bar we have to make कंट्रोल फ्रेम भी हैव टू मेक, दिस कंट्रोल फ्रेम भी हैव टू मेक। सो इस कंट्रोल फ्रेम के लिए हमको क्या करना होगा? सेम सिंटेक्स रहेगा सब कुछ। पहले एक कमेंट डाल देते हैं, हम फ्रेम लेबल फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे लेबल फ्रेम बनाने के लिए। सो सबसे पहले कंट्रोल ऑडियो कंट्रोल फ्रेम बार containing play, pause and etc buttons. So we have put a comment. Now we will write audio control. This is the name of the this is only the variable that I have maken. Now label frame एंड इनसाइड लेबल फ्रेम हमको लिखना होगा कि हम किस विंडो के अंदर लेबल फ्रेम बनाने वाले हैं। रूट विंडो के अंदर बनेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये जो है ये ऑडियो कंट्रोल वो इस रूट विंडो के अंदर है ना, ये पूरी की पूरी रूट विंडो के अंदर, तो हमको रूट लिखना पड़ेगा। नाउ इनसाइड आफ्टर रूट वी हैव टू राइट बैकग्राउंड कलर जो है वो हम डालेंगे ग्रे 17 बैकग्राउंड कलर डाल दिया। उसके बाद आएगा फोरग्राउंड कलर टेक्स्ट लिख लेते पहले। टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट में हम डालेंगे कंट्रोल्स कैपिटल कर देते इसको तो और अच्छा लगेगा। कंट्रोल्स। नाउ टेक्स्ट के बाद उसका फोरग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? टेक्स्ट का फोरग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? सो FG एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर लिख देंगे एक्वा मरीन होना चाहिए। फोरग्राउंड कलर एक्वा मरीन होना चाहिए, एक्वा मरीन। नाउ एक्वा मरीन के बाद फोरग्राउंड कलर भी सेट हो गया। फोरग्राउंड कलर सेट होने के बाद BD इज इक्वल्स टू सो बेसिकली यहाँ पे हम एक चीज़ और दे सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड BD। तो BD जो होता है वो बॉर्डर विड्थ होता है। सो उसका जो एग्जैक्ट यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं बटन्स को बनाऊंगा। फिलहाल के लिए इसको BD इक्वल्स टू लाइक वी कैन राइट 7। सो बेसिकली बॉर्डर विड्थ जो होता है वो बॉर्डर की विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। एग्जैक्ट यूज़ जब उसके बटन्स बनाएंगे तब एकदम क्लियरली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली BD होता क्या है। सो वी कैन पास BD ऑल्सो इन दिस ऑल्सो वी कैन राइट BD। सो यहाँ पे लिख लेते हैं BD इक्वल्स टू 7 और यहाँ पे भी लिख लेते हैं BD इक्वल्स टू 7 BD इक्वल्स टू 7। After that we will write text we have written, then font, which type of font we required. So inside this font we will simply write Arial. After that the size of the font, that is 12, and then after that we have to write italic bold format में चाहिए हमको, एक italic bold format में चाहिए हमको।
सो ये भी क्लियर हो गया। नाउ ऑडियो कंट्रोल डॉट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सो इसकी मदद से क्या होगा, ऑडियो कंट्रोल डॉट कॉन्फ़िगर, इससे क्या होगा, हम प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं विड्थ, उसकी विड्थ कितनी चाहिए, और उसके बाद आएगा यहाँ पे हाइट, HEIGHT, हाइट, हाइट कितनी चाहिए। ना मैंने विड्थ और हाइट पहले से कैलकुलेट कर देंगी, तो मैं डायरेक्ट उसको पुट कर लेता हूँ। आप लोगों को अगर अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप लोगों को उसके लिए बहुत क्या उसको फिक्स करके बार बार ट्राई करना पड़ेगा और फिर पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली में आपको कितनी विड्थ चाहिए। सो मैंने विड्थ जो है वो सेट कर रखी 620 एंड हाइट जो है वो सेट करनी है 300। सो हाइट 300 सेट कर देंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट audio control dot grid, which is one of the geometry management method. Inside that I have to pass row. So row equals to suppose row equals to 2 and column equals to column equals to 1 and pad x equals to pad x equals to 5 and pad y equals to 4. Pad x and pad y I have given, then I have to add the column span. Column span equals to 5. So basically I have calculated all these values, but if you are making your own project then you should have to first calculate and then you have to fix those values according to your wish and according to your requirements. So if I run this program, if I run this program, then you will see that this control frame is appear in our screen. Now the point is that कंट्रोल फ्रेम, ऑडियो ट्रैक और कंट्रोल फ्रेम के बीच में हमको प्रोग्रेस बार फ्रेम भी बनाना है, जिसमें क्या इस तरीके से ये वाला प्रोग्रेस बार फ्रेम भी बनाना है। ऑडियो ट्रैक और कंट्रोल फ्रेम लेवल के बीच में हमको प्रोग्रेस बार लेवल फ्रेम भी बनाना है, और इस चीज़ को बनाने के लिए हम सब सेम मेथड होगा तो उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और बेसिकली वन मोर थिंग, जो पैड एक्स और पैड वाई होता है, पैड एक्स जो होगा वो डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस लेवल फ्रेम एंड दिस लेवल फ्रेम फॉर ऑडियो ट्रैक फ्रेम। ऑडियो ट्रैक फ्रेम के लिए जो पैड एक्स होगा वो इस लेवल फ्रेम से इस लेवल फ्रेम के बीच का डिस्टेंस होगा, एंड पैड वाई जो होगा वो अपर एक्स वाई एक्स ये इससे यहाँ पे से डिस्टेंस होगा उसका। और सिमिलरली कंट्रोल के लिए जो पैड वाई होगा वो ये वाला डिस्टेंस होगा ऑडियो ट्रैक और कंट्रोल फ्रेम के बीच का, और जो पैड एक्स होगा वो इधर से इधर तक का डिस्टेंस होगा। सो दैट इज़ द पैड एक्स एंड पैड वाई। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू क्रिएट अ प्रोग्रेस बार फ्रेम। प्रोग्रेस बार फ्रेम बना लेते हैं। उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले वेरिएबल ले लेते हैं लाइक प्रोग्रेस बार फ्रेम इज इक्वल्स टू लेबल फ्रेम विजिट का इस्तेमाल करेंगे, लेबल फ्रेम विजिट का इस्तेमाल करेंगे लेबल फ्रेम बनाने के लिए। नाउ दिस अगर इसको देखें तो यहाँ पे जो ये प्रोग्रेस बार लेबल फ्रेम है ये कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारा रूट के अंदर प्रेजेंट है। रूट जो मेन विंडो थी उसके अंदर प्रेजेंट है, तो रूट पास करेंगे सबसे पहले। देन आफ्टर पासिंग रूट वी शुड हैव टू प्रोवाइड द बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू 17 ग्रे 17 ग्रे 17। दिस इज द नेम ऑफ द कलर, ग्रे 17 इज द नेम ऑफ द कलर। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट लाइक सपोज हम पास कर सकते हैं BD, दैट इज बॉर्डर विड्थ 7 यूजिंग द BD एट्रीब्यूट, एंड फोरग्राउंड इक्वल्स टू सब लिख लेते हैं लाइक पिंक। फोरग्राउंड एट्रीब्यूट FG एट्रीब्यूट की वजह से हमने पिंक पास करके वैल्यू। नाउ स्लाइडर बार फ्रेम डॉट grid, not grid, it should be slider bar not progress bar, I'm sorry, progress bar frame dot grid not configure, ताकि
कुछ कोई भी फंक्शनलिटीज़ को चेंज करने के लिए हम कॉन्फ़िगर का इस्तेमाल करते हैं। एंड इनसाइड द कॉन्फ़िगर वी विल पास द विड्थ एंड द हाइट, और विड्थ और हाइट मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे जब आप क्रिएट करेंगे। ये वाली इस वैल्यू जो है ये तो वर्क करेंगी, लेकिन जैसे आप कोई अगर नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसमें इन वैल्यूज़ को आपको खुद ही पहले डिसाइड करना होगा, फिर सेट करना होगा, फिर सोचना होगा, और फिर उसको फिक्स करना होगा उन वैल्यूज़ को, तब जाके वो ईजिली इम्प्लीमेंटेबल होगा। एंड हाइट इक्वल्स टू मैंने सेट कर रखी है हाइट 70। आफ्टर दैट आई हैव टू राइट स्लाइडर बार, no slider bar now, progress bar frame dot grid, inside the grid row equals to, and column we have to pass row column pad x then pad y। now अब इसकी वैल्यूज को पुट करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। और कॉलम स्पैन भी डालना होगा, कॉलम स्पैन राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रो कॉलम पैड एक्स पैड वाई, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो है रो 0 पे है, ये रो 1 पे है, ये रो 2 पे है। सो और हमने यहाँ पे सॉरी मैंने रो 1 लिखा था, पहले ये रो 1 था। सपोज़ इसको मैं बिना कमेंट कर लूँ, अगर मैं इसको कमेंट कर लूँ इन 3 लाइनों को, तो और फिर इस प्रोग्राम को रन करूँ, सो आप देखोगे कि आउटपुट क्या है, पहले की तरह सिमिलर। जो रो 2 जैसे रो 0 ये था, रो 1 ये वाला था, तो रो 1 पे ये आ गया। बट हमको अकॉर्डिंग टू एक्चुअल प्रोजेक्ट जो रो 1 पे हमारा ये है, स्लाइडर बार है, प्रोग्रेस बार है, और रो 2 पे जो है वो हमारा कंट्रोल है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, मतलब कि इसको कर लेंगे रो 2, इसको कर लेंगे रो 2, और इसके लिए कर लेंगे रो 1। अब कॉलम के लिए देख लेते हैं। तो कॉलम के लिए जो है ये कॉलम नंबर 0 है और ये कॉलम नंबर 1 है, ये वाला इसके लिए तीनों के लिए कॉलम 1 होगा ही। तो इसको कॉलम 1 को सेट कर लेंगे 1, और पैड एक्स जो होगा वो मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले से अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। सो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप भी इसको चेंज कर सकते हैं फॉर न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए तो ये वाली वैल्यूज़ काम करेंगी बराबर, बट अगर कोई नया प्रोजेक्ट बनाते तो उसके लिए आपको खुद से पहले वैल्यूज़ को सेट करना पड़ेगा। Now if I run this, then you will see that the output will be same as we have expected. Sorry, I have write the wrong spelling of height. Yeah, you can see that the output is now coming as we have expected. After that now we have to create a volume control frame over there. Here like this way we have to create the volume frame label बनाना होगा हमको यहाँ पर। वॉल्यूम फ्रेम लेबल हम कैसे बनाएंगे, सेम टू सेम प्रोसीजर। सो यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम फ्रेम लेबल frame। Now we have to create a volume label frame like this way। इस तरीके से ये वाला वॉल्यूम लेवल फ्रेम बनाना होगा यहाँ पे। सो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले कमेंट कर लेते हैं, कमेंट में लिख लेते हैं वॉल्यूम लेवल फ्रेम। सो वॉल्यूम लेवल फ्रेम वी आर गोइंग टू क्रिएट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वो ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, वॉल्यूम लेवल फ्रेम। आफ्टर दैट वॉल्यूम लेवल फ्रेम यहाँ पे लिखना होगा लेबल फ्रेम विजिट का इस्तेमाल करेंगे।
लेबल फ्रेम, एंड लेबल फ्रेम के बाद जो ये है ये वाली वैल्यूज़, जो ये लेबल फ्रेम है, वॉल्यूम लेबल फ्रेम है, ये कौन सी विंडो के अंदर प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड दी मेन विंडो, दैट इज़ अ रूट विंडो। रूट विंडो के अंदर प्रेजेंट है, तो रूट लिखेंगे यहाँ पे। आफ्टर दैट बैकग्राउंड बी जी इक्वल्स टू, उसका जो बैकग्राउंड है वो है ग्रे 17, सो ग्रे 17 कलर बैकग्राउंड डाल दिया। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट बी डी इक्वल्स टू, बॉर्डर विड्थ डाल देते हैं, border width equals to 7, and then we have to write foreground, fg is equals to foreground not, because we have not write any text over there, so there is no need to write foreground. So that's it, and we have to write volume label frame dot configure to configure the volume frame label, or to change the functionalities of the volume label frame. Here width पास कर देते हैं, width इक्वल्स टू, मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखी, तो मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ 100, एंड हाइट इक्वल्स टू GST हाइट इक्वल्स टू 345, दैट इज़ 345। आफ्टर दैट हमको यहाँ पे करना होगा ग्रिड मेथड का इस्तेमाल। सो वॉल्यूम लेबल फ्रेम डॉट ग्रिड, सॉरी डॉट ग्रिड, और inside the grid we have to pass the row and column. So row and then column, then pad x, then pad y, then pad x and pad y पास करना होगा। सो रो आई हैव कैलकुलेटेड 0, रो जो होगी 0 होगी, कॉलम जो होगा वो होगा 1, एंड पैड एक्स कॉलम 1, कॉलम नॉट 1, कॉलम नॉट 1, कॉलम 2 होना चाहिए, या एंड पैड एक्स जो होगा वो हो जाएगा, सपोज आई हैव कैलकुलेटेड 4, एंड पैड वाई कर लेते हैं 16। सो पैड एक्स एंड पैड वाई, नहीं पैड वाई 16 नॉट, पैड वाई 10 करते हैं, 10 अच्छा लगेगा। So if I, before running it, I want to show something, and that is if you see that row, I have taken row equals to 0 and column equals to 2. So you see over there, this is row 0, this whole is row 0. For playlist is having the row 0, audio track is having a row 0, and this is also having a row 0. Now column 1 playlist having column, playlist not playlist, I'm saying that the label frame which contains the nav bar and the playlist is having the row 0, and audio track is also having row 0, and this nav bar, this volume bar is also having a row 0, and this playlist, this nav bar with, so before running it, I want to show you something, and that is, here I have taken row equals to 0, column equals to 2, pad x equals to 4, pad y equals to 10. So अगर हम यहाँ पे देखें तो जो लेबल फ्रेम है जिसमें नैव बार है और जिसमें प्लेलिस्ट है, ये जो है हमारा रो 0 है इसकी, और कॉलम क्या है 1 है। सिमिलरली ऑडियो ट्रैक जो है इसकी रो क्या है 0 है, रो इसी रो में आ रही है, रो 0 है, एंड कॉलम क्या है 1 है। और इसी तरीके से जो ये है वॉल्यूम बार लेबल फ्रेम है, जो इसका भी रो 0 है, कॉलम क्या है 1 है, तो कॉलम क्या है 2 है, रो 0 और कॉलम 2 है। देखो कॉलम 1, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, और रो क्या है 0 है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे रो 0 ले रखी है और कॉलम 2 ले रखा है। पैड एक्स इक्वल्स टू 4 लिया है, पैड वाई इक्वल्स टू 10 ले रखा है। ये तो बेसिकली पैड एक्स मतलब कि यहाँ से ऑडियो ट्रैक और इसके बीच का डिस्टेंस, और पैड वाई यानी कि यहाँ से लेके इसके अपर एज का डिस्टेंस। सो दैट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन दैम। नाउ इफ आई रन इट, देन यू विल सी दैट वी गेट द करेक्ट आउटपुट एज वी हैव एक्सपेक्टेड। Yeah, so everything is now fixed. Now if I run this program again, then
अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है। मैंने उसको स्टार्टिंग में चेंज किया था, बट आई थिंक मैंने फिर डिलीट कर दी उस लाइन को, सो दैट्स वाई डिलीट कर दिया होगा उस लाइन को, तो दैट्स वाई ये कलर अभी पीछे का नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, दोबारा कोड में देख लेते हैं, और क्योंकि जो एक्चुअल कलर है वो तो हमारा एक्वा मरीन है जो पीछे होना चाहिए, सो एक्वा मरीन कलर लेके आते हैं। सो लेट मी चेक द कोड अगेन। या देखो मैंने वो लाइन को डिलीट कर दिया था, तो उस लाइन को ले आते हैं, दैट इज़ रूट डॉट कॉन्फ़िगर, root dot configure, and in this bg is equals to aquamarine. Now if I run this again, then you will see that the output will be same as we have expected. Yeah, the background color is changed now. So in this video we have divided our main screen into the various label frames, and we have also changed the background color to the aquamarine color. And now in my next video I will tell you about how to download those buttons which are inside this control label frame. So let me tell you what I need to say. If I run this program, then so there is the buttons like previous button, and play button, and the next song button, this mute button, this volume down volume up button. So these are the buttons that we have to download. So I will tell you that from where we gonna download this button, and I will also tell you that from where we gonna download this audio track image, and some more buttons also, like for example this play online button, and this button. So I will tell you all those buttons, that from where we gonna download these buttons. So till then, bye bye, and for my own motivation and for more such videos, please like, comment, share, and subscribe my videos. Thank you.